یہ عمران کی کہانی ہے جو ایک لوہار کا بیٹا تھا۔ اس کا باپ بادشاہ کے لیے تلواریں اور ہتھیار بناتا تھا۔ عمران ایک مضبوط جسم والا لڑکا تھا، لیکن وہ ہمیشہ بازار میں تاجروں سے لڑتا رہتا تھا۔ اس کے والد اسے ہمیشہ چیزیں سمجھاتے تھے، لیکن اس نے اپنے باپ کی نہ سنی اور بازار میں لوگوں سے لڑتا رہا۔ اس لیے اس کا باپ اسے زبردستی بادشاہ کی فوج میں بھیجتا ہے تاکہ وہ وہاں سدھر جائے۔ لیکن محل میں عمران کی ملاقات بادشاہ کی بیٹی سے ہوتی ہے۔ شہزادی ایک مغرور لڑکی تھی جسے اپنی خوبصورتی پر ناز تھا۔ ایک دن محل کے اندر عمران غلطی سے شہزادی سے ٹکرا جاتا ہے اور وہ اس پر ناراض ہو جاتی ہے اور اس سے سب کے سامنے معافی مانگنے کو کہتی ہے۔ لیکن عمران اس سے معافی نہیں مانگتا، وہ سب کے سامنے اس کی توہین کرتا ہے۔ تو شہزادی ناراض ہو جاتی ہے اور اسے جیل میں ڈالنے کا حکم دیتی ہے۔ کیا عمران کو جیل میں ڈالا جائے گا؟ اور یہ جاننے کے لیے کہ بادشاہ اس کے ساتھ کیا کرے گا، یہ دلچسپ کہانی دیکھیں۔ یہ بہت پہلے کا زمانہ تھا جب دنیا ابھی تک تلواروں کی چمک، گھوڑوں کی ٹہلنے اور دعاؤں کی آوازوں سے گونجتی تھی۔ فرید آباد نام کا ایک شہر تھا۔ یہ شہر اللہ تعالیٰ کی قدرت کا عجیب نمونہ تھا۔ ایک طرف سمندر کی گہری نیلی لہریں تھیں۔ وہ لہریں دن رات چھپ کر آتی جاتی رہیں، کبھی ہلکی ہلکی آواز نکالتی تو کبھی زوردار طوفان لے آتی۔ رات کو جب شہر سو گیا تو لہروں کی آواز گویا ہوئی جیسے کوئی ماں اپنے بچے کو نرم لوری گا رہی ہو۔ لوگ چھت پر چارپائیوں پر سوتے تھے، سمندر کی ٹھنڈی ہوا کو سہتے ہوئے، اور صبح اٹھتے ہوئے ہم کہتے ہیں کہ اے اللہ، تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں یہ سکون بخشا۔ دوسری طرف ایک وسیع صحرا تھا، ریت کی لمبی پہاڑیاں جو دھوپ میں تپتی رہیں۔ دن کے وقت ریت اتنی گرم ہو جاتی کہ اگر آپ اس پر قدم رکھیں تو جل جائے گی۔ ریت ہوا کے جھونکے سے اڑ کر طوفان میں بدل جاتی، آنکھوں میں داخل ہو جاتا۔ لیکن سورج غروب ہوتے ہی وہی صحرا سرد ہو جاتا، رات کی ہوا ٹھنڈی ہو جائے گی، ستارے چمکنے لگیں گے اور لوگ کہیں گے کہ اے اللہ، مجھے تیری قدرت دیکھنے دے۔ آپ نے پانی اور ریت دونوں کو ملا کر ایک شہر بنایا تاکہ ہم یاد رکھیں کہ سب کچھ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ شہر کے بیچوں بیچ سڑکیں پتھر کی بنی ہوئی تھی، گھر مضبوط اور صاف ستھرا ہے، بازار ہر طرف سے زندہ ہوتا۔ صبح کے وقت مؤذن کی اذان گونجتی، لوگ جلدی جلدی وضو کر لیتے، مسجد کی طرف بھاگا۔ بازار نماز کے بعد کھل جاتا، پھلوں کی میٹھی خوشبو، مسالوں کی تیز آواز، کپڑوں کی دکانوں میں لٹکی رنگ برنگی چادریں اور لوہار کے ہتھوڑوں کی آواز بھی جو دن بھر گونجتی رہتی تھی۔ شور مچانے والے تاجروں کے شہر کے سب سے اونچے مقام پر ایک محل کھڑا تھا۔ دیواریں اتنی اونچی ہے کہ ان پر چڑھنا مشکل ہے۔ دروازوں پر لوہے کے بھاری تالے تھے اور سپاہی دن رات پہرا دیتے تھے۔ دیواروں پر کمانوں اور تیروں کے ساتھ کھڑے سپاہی، اندر سونے اور چاندی سے مزین۔ یہ محل شہنشاہ نظام الدین کا تھا۔ بادشاہ نظام الدین ایسا شخص تھا کہ لوگ اسے دیکھ کر کہتے کہ یہ اللہ کا نیک بندہ ہے۔ انہوں نے کبھی کسی پر ظلم نہیں ہونے دیا۔ وہ روزانہ صبح عدالت میں بیٹھ کر لوگوں کی شکایتیں سنتے اور انصاف فراہم کرتے، خواہ وہ امیر ہو یا غریب۔ وہ صرف اپنے حقوق کے لیے لڑتے تھے، کبھی غرور کے ساتھ نہیں۔ اس نے شہر کی اتنی ترقی کی تھی کہ لوگ دور دور سے آتے تھے، کچھ تجارت کے لیے، کچھ علم حاصل کرنے کے لیے، کچھ صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ ایک اچھا حکمران کیا کر سکتا ہے۔ بادشاہ کی صرف ایک بیٹی تھی، شہزادی الشفا۔ الشفا اب ابتدائی جوانی میں تھی۔ اس کا چہرہ اتنا تابناک تھا کہ چاند بھی شرما جاتا تھا۔ سفید رنگت جیسے دودھ سے ڈھلی ہوئی کالی آنکھیں، کالے بال کاجل سے لمبے اور چمکتے ہونٹ، ریشم جیسے گلابی پھول جیسے۔ جب وہ چلتی تو اس کے کپڑوں کی سرسراہٹ سے خوشبو پھیل جاتی۔ لیکن اس کے دل میں شہزادی ہونے کا کچھ غرور تھا۔ وہ نئے کپڑے پہن کر اپنے دوستوں کے ساتھ بازار جاتی تھی، سونے چاندی کے زیورات پر کم دیکھتی تھی، لیکن لوگ کہتے تھے کہ تمہاری خوبصورتی کم ہے، اللہ کی نعمت۔ الشفا مسکرا دیتی، مگر اندر سے سوچتی، ہاں میں شہزادی ہوں، سب میری طرف دیکھتے ہیں، میری حیثیت مختلف ہے۔
अब बाजार की एक तंग सी गली में अब्दुल्ला लोहार की दुकान थी। अब्दुल्ला बूढ़ा हो चुका था, दाढ़ी सफ़ेद हो गई है, उसके चेहरे पर लकीरें थीं जो उसकी मेहनत की गवाही दे रही थी, लेकिन हाथ फिर भी मजबूत थे। उंगलियां काली मगर ताकतवर। हर तलवार, हर हथियार, हर किसान का हल उसके हाथों से ऐसे निकला जैसे जिंदा हो। लोग कहते थे कि अगर अब्दुल्लाह की तलवार दुश्मन के सामने आ जाए तो वो हार मानेंगे, क्योंकि वो जानते थे कि ये तलवार सिर्फ इंसाफ के लिए बनाई गई है। अब्दुल्लाह रोज सुबह दुकान खोलता, यलवहा आग में डालता, आग जलाता, फिर हथौड़ा उठाता और हथौड़े की आवाज गूंजती रहती। मैं काम करते हुए नमाज पढ़ता रहा। ए अल्लाह, मेरे हाथ पर करम फरमा, अवाम को फायदा पहुंचाए, गुनाहों से बचो, मेरे खानदान की हिफाजत फरमा। अब्दुल्ला का एक ही बेटा था, इमरान। इमरान अब एक बड़ा आदमी बन चुका था। लंबा कद, चौड़ा जिस्म, बाजू ऐसे कि छड़ी को तोड़ सके। इसका सीना पत्थर जैसा मजबूत था, इसका चेहरा सख्त था, इसकी आंखें तेज थीं और इसने अभी हल्की दाढ़ी बढ़ाई थी, लेकिन गुस्सा बहुत शदीद था। बाजार में बाप के साथ किसी ने बदतमीजी की तो इमरान का खून उबल पड़ेगा। वो घोंसा मारता, लाठी उठाता और बाज औकात अपनी तलवार भी निकाल लेता। लोग इससे डरते थे, कहते हैं इमरान से दूर रहो, वो आग का गोला है। लेकिन इमरान अपने वालिद से बहुत प्यार करता था। रात को वो अपने बाप के पास बैठता, उनके कंधों पर मालिश करता, उनके हाथों को सहलाता और कहता, अब्बा आप थक गए हैं, मैं अभी दुकान संभालूंगा, आप आराम करें। अब्दुल्ला ने मुस्कुराकर उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे और तुम्हारा दिल पाक रखे। घर में इमरान की वालदा फातिमा एक मुत्तकी खातून थी, हमेशा चुपके से नमाज पढ़ती थी। इसके चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट थी, लेकिन इसकी आंखों में परेशानी थी। एक छोटी बहन आयशा, जिसकी उम्र सिर्फ 10 से 12 साल है, इमरान को भाईजान कहती थी। भाई मुझे बाजार ले चलो, मुझे सुर्ख फूल चाहिए। घर छोटा था, एक कमरा, एक छोटा सा बावर्ची खाना, लेकिन पुरामन था। रात को अब्दुल्ला सबको जमा करता। वो कुरान मजीद की तिलावत करते, सूरतुल बकरा पढ़ते और फिर सबके लिए दुआ करते। उन्होंने कहा कि दे अल्लाह मेरे बेटे का गुस्सा ठंडा कर, इसे सब्र की तलकीन फरमा और हम सबको गुनाहों से बचा, आमीन। एक शाम को एक मालदार सौदागर जुबैर बोल्ड, ताज़ा, भरपूर कपड़े पहने अब्दुल्ला की दुकान पर आया। उसने एक नई तलवार उठाई और इसकी तरफ देखा। उसने आवाज़ बुलंद करते हुए पूछा, ये क्या बकवास है? अब्दुल्ला ने पूछा, इतनी महंगी? तुम डाकू हो, शहर के लोगों को लूट रहे हो। अब्दुल्ला ने एहतराम से सर झुकाकर कहा, भाई ये मेहनत की इस कीमत को हासिल करने में इतना वक्त और मेहनत दरकार है। अगर आपको ये पसंद नहीं है तो इसे रखें। सौदागर मजीद गुस्से में आ गया, तुम मुझे पढ़ाओगे? मैं शहर का बड़ा ताजिर हूं, लोग मेरे आगे सर झुकाते हैं। इमरान दुकान के पीछे लोहा साफ कर रहा था। मैंने सुना। उसका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। वो बाहर आया, ताजिर का गिरेबान पकड़ा। इसने कहा, तुमने बाप से इस तरह बात की है? शहर के बड़े ताजिर ने अब उसे देखा और घोंसे मारे। पहला घोंसा मुंह पर लगा, दूसरा सौदा सौदागर की गर्दन पर पड़ा। मुंह से खून निकल आया, दांत टूट गया। सौदागर चीखा, मारा गया। लोगों देखो ये लोहार का बेटा क्या कर रहा है, मैं बदला लूंगा। लोग जमा हो गए, कुछ ने उसे रोकने की कोशिश की। अब्दुल्ला दौड़ता हुआ आया, इमरान को पीछे धकेल दिया गया। सौदागर के पास बैठ गया। मैंने माफ़ी मांग ली। भाई मुझे माफ़ कर दे, मेरा बेटा नाराज़ है, मैं मुआवजा देता हूं। सौदागर उठ गया, वो खून पहुंचता हुआ चला गया। चीखते रहे। अब्दुल्ला सारी रात सो न सका। मैं जब भी बिस्तर पर लेटता और आंखें बंद करता तो मुझे इमरान की लड़ाई याद आती। मैं हैरान हूं कि यह लड़का आगे क्या करेगा। ताजिर अमीर है, बदला लेगा। बाजार वाले आपका साथ देंगे ताकि आपकी जान को खतरा ना हो।
फातिमा ने उठकर पानी दिया, नरमी से पूछा, क्या हुआ जनाब, तुम इतनी रात को जागते हो? अब्दुल्ला ने रोते हुए कहा, फातिमा, मेरा बेटा गुस्से का गुलाम हो गया है। बाजार में लड़ाइयाँ, मुझे डर है कि वो मर जाए या कैद हो जाए। ऐ अल्लाह, उसे हिदायत अता फरमा, उसे सब्र अता फरमा। अगली सुबह कमांडर जमाल अब्दुल्ला की दुकान पर आया। जमाल की उम्र 50 साल से ज्यादा थी, लेकिन उसका जिस्म अभी तक चट्टान की तरह मजबूत था। घने बाजू, चौड़ा सीना, गहरी सियाह दाढ़ी। बादशाह के सबसे वफादार सालार से पैसे। वो पिछले 25 साल से लश्कर की कमान कर रहे थे। बादशाह ने हर जंग उसकी वजह से जीती। उसकी हिकमत अमली, उसकी बहादुरी, उसकी वफादारी। जमाल अब्दुल्ला से बहुत मोहब्बत करता था, क्योंकि ये उनकी तलवारें थीं जो जंगों में दुश्मनों के सीनों में छेद करती थीं। जब भी वो नई तलवार लेने आता तो हम बैठकर बातें करते। जमाल ने देखा कि अब्दुल्ला की आंखें सुर्ख हो रही हैं, उदास चेहरा। अब्दुल्ला साहब से पूछा, क्या हुआ, आज तुम इतने उदास क्यों हो? को परेशानी? अब्दुल्ला ने सब कुछ बता दिया। इमरान की लड़ाई, ताजिर का दांत टूटना, खून, इंतकाम की धमकी, फिक्र। जमाल ने मुस्कुराते हुए कहा, अब्दुल्ला साहब, आप फिक्र ना करें, अल्लाह ने एक रास्ता बनाया है। मेरी एक तजवीज़ है, इमरान को मेरी फौज में भेज दो। बाजार में छोटी छोटी लड़ाइयों के बजाय दुश्मन से लड़ना बेहतर है। वहाँ वो नज़्म ज़ब्त सीखेगा और अपने गुस्से पर काबू पाएगा। वो जंग का असल मकसद समझ जाएगा। मैं उसका ऐसे ख्याल रखूंगा जैसे वो मेरा अपना बेटा हो। अब्दुल्ला ने रात भर जागकर तहज्जुद पढ़ने का सोचा। मैंने अल्लाह से दुआ की कि मेरा बेटा सही रास्ते का इंतखाब करे और उसकी हिफाजत करे, गुनाहों से बचो। शुभ मैंने हाँ कहने का फैसला किया। सुबह इमरान को फ़ोन किया, बेड पर बैठा था। अब्दुल्ला ने कहा, बेटा, मैं बैठकर अपने दिल की बात करना चाहता हूँ। इमरान बैठ गया। अब्दुल्ला ने नरमी से कहा, बेटा, मैंने सोचा है कि तुम बादशाह की फौज में शामिल हो जाओ। मेरा दिल का ख्वाब है कि मेरा बेटा हमारे शहर के लिए लड़े। लोगों को इसकी बहादुरी की तारीफ करनी चाहिए। शहर की हिफाजत करो। उसने झूठ बोला ताकि इमरान इनकार ना करे, क्योंकि इमरान अब्बू को अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। इमरान ने शुरू में इनकार कर दिया। पापा, मैं आपको छोड़ नहीं सकता, तुम अकेले रह जाओगे। दुकान का काम कौन करेगा? अम्मा और आयशा का ख्याल कौन रखेगा? अब्दुल्ला ने कहा, बेटा, मैं ठीक हूं, आयशा और अम्मी है। ये मेरा ख्वाब है, इसे मुकम्मल करें, अल्लाह आपको बरकत देगा। इमरान ने नम आंखों से कहा, ठीक है अब्बा, मैं आपका ख्वाब पूरा करूंगा। मैं कल से महल जाऊंगा। अगली सुबह इमरान महल के दरवाजे पर पहुंचा। दरवाज़ा इतना ऊंचा और बड़ा था कि 2 हाथी आसानी से अंदर जा सकते थे। पुलिस वाले ने उसे रोककर पूछा, भाई, आप कौन हैं? आपका क्या काम है? इमरान ने कहा कि कमांडर जमाल ने फ़ोन किया है। मैं इमरान अब्दुल्ला का बेटा हूं। पुलिस वाले ने उसकी तरफ देखा और फिर उसे अंदर ले गया। महल के अंदर एक बड़ा मैदान था। घोड़ों से बंधे सिपाही तरबियत कर रहे थे। घर सवारी की आवाज़ें, तलवारों की चमक, तेरों की सेटी हर तरफ गूंज रही थी। अल्लाह अकबर, पाक फौज जिंदाबाद। जमाल ने इमरान की तरफ देखा। उसने मुझे गले लगाया और कहा, तुम वो इमरान हो, तुम बाजार में ताजरों का जीना मुश्किल कर रहे हो। मैंने सुना है कि इमरान ने शर्मिंदगी महसूस की और सर झुका लिया। जमाल ने कहा, बेटा, यहां तुम्हें सिर्फ जिस्मानी ताकत की जरूरत नहीं है, तुम्हें दिल की भी ताकत चाहिए। बादशाह और उसके खानदान की इज्जत करो, नाफरमानी बिल्कुल नहीं होगी। चलो तरबियत शुरू करते हैं। पहले हमने तलवार चलाना सीखा। तरबियत का आगाज पहले दिन से हुआ, जिसमें इमरान को तलवार पकड़ने का तरीका सिखाया गया। हाथ में तवाज़ुन कैसे रखा जाए, हमला कैसे किया जाए, इससे कैसे बचना है, फिर घोड़े की सवारी कैसे करनी है, लगाम कैसे पकड़नी है, तेज सवारी कैसे करनी है, कैसे रोकना है, फिर तीर अंदाजी, कमान को किस तरह खींचना है, अपनी सांस रोके, निशाना बनाए और तीर चलाएं। इमरान ने सारा दिन मेहनत की, पसीना बहाया। इसके हाथ में छाले पड़ गए, पाँव में दर्द हो रहा था, लेकिन वो कभी नहीं रुका। रात को वो घर जाकर बाप से कहता,
کہ अब्बा आज मैंने तलवार चलाना सीख लिया है। कमांडर ने कहा, मैं तेजी से सीख रहा हूं। अब्दुल्ला ने मुस्कुराते हुए सर पर हाथ फेरते हुए दुआ की, माशा अल्लाह बेटा, अल्लाह तुम्हें मजीद ताकत दे, सब्र करो। एक दिन जमाल ने कहा, बेटा आज महल के अंदर एक छोटा सा काम है, मुझे जाकर नई तलवार का नमूना बादशाह को दिखाना है, इज्जत करो। इमरान अंदर गया और महल की शान और शौकत से हैरान रह गया। वो फर्श पर गिर गया। सोने और चांदी के कंधे, दीवारों पर लिखी हुई कुरानी आयात, अना लिल्लाह राजिऊन, चांदनी झूम रही थी। गुलाब और ऊद की खुशबू फजा में थी। मैं एक बड़े कमरे में पहुंचा तो शहजादी अनशिफा को पाया। वो अपनी सहेली के साथ बैठी कोई किताब, शायद कुरान या कोई कहानी पढ़ रही थी। इमरान ने एहतरामान सलाम किया और शहजादा आलिया को देखा। वो उठ खड़ी हुई। उसे पहचान लिया, ये वही लड़का है जो बाजार में लड़ता था। किसी छोटी सी बात पर इमरान तलवार दिखाने के लिए झुक गया और गलती से उसके स्कार्फ को छू गया। अनशिफा ने गुस्से से कहा, तुम यहां क्या कर रहे हो? बाहर निकल जाओ, ये महल है, बाजार नहीं। इसे अपने गंदे हाथों से मत छूना। इमरान गुस्से से बोला, मैं काम के लिए आया हूं शहजादी, उसने कहा। इतने गुस्से में क्यों हो? लड़ाई हुई। अनशिफा ने चीख कर कहा, उसे यहां से ले जाओ, ये बदतमीज लड़का। जमाल को खबर मिली। जमाल ने इमरान को समझाया, बेटा वो शहजादी है, इज्जत से पेश आना चाहिए, बराए मेहरबानी मुआफ़ी मांगे। इमरान ने सर झुकाकर कहा, मुआफ़ करना शहजादी, ये मेरी गलती थी, मैं अब से होशियार रहूंगा। और वो चला गया। अनशिफा अंदर ही अंदर गुस्से में थी। मैं सोचता रहा कि मैं इस मगरूर लड़के को कभी मुआफ़ नहीं करूंगा। दिन गुजरते गए, इमरान बदलता रहा। गुस्सा आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगा। वो तरबियत में हमेशा सबसे आगे रहते थे। सिपाहियों ने इसकी तारीफ करते हुए कहा कि ये लड़का शेर है। मैंने पहली बार बहुत कुछ सीखा। जमाल खुशी से कहता, बेटा अब तुम बदल रहे हो, अल्लाह ने आपको हिदायत दी है, अपने गुस्से को काबू में रखें। फिर एक दिन बादशाह ने दरबार में ऐलान किया, खबर आई है कि छोटा सा कस्बा ज़ादपुर दुश्मन के कब्जे में आ गया है। हमारे मासूम लोग जुल्म और सितम का शिकार हैं। ख़वातीन और बच्चे परेशान हैं। फौज तैयार है। हम अपने हुकूक के लिए लड़ेंगे और जुल्म का खात्मा करेंगे। जमाल ने तैयारी शुरू कर दी। उसने सिपाहियों को हुक्म दिया कि वो अपने हथियार तेज करें, अपने घोड़ों को खाना तैयार करें और दुआ करें। इमरान भी तैयार हो गया। जाने से पहले घर पहुंच गए। अब्दुल्ला ने उसे गले लगाया। उसने नम आंखों से कहा, बेटा अल्लाह मेरी हिफाजत करे, सारी रात दुआ करूंगा। फातिमा रोने लगी और दुआएं मांगती रहीं, ए अल्लाह मेरे बेटे को लौटा दे। आयशा ने उसका हाथ पकड़कर कहा, भाई जल्द वापस आकर एक कहानी सुनाओ। इमरान ने सबको गले लगाया और कहा, इंशाअल्लाह मैं जल्द वापस आऊंगा। सब दुआ करें और अल्लाह पर यकीन रखें। फौज चली गई। जमीन घोड़ों की आवाजों से गूंज रही थी। तलवारें चमक रही थीं, झंडे लहरा रहे थे। शाम तक पहुंच गए और ज़ादपुर के करीब डेरे डाले। जमाल ने सिपाहियों को इकट्ठा किया और कहा, भाई कल फजर की नमाज के बाद जंग शुरू होगी। सब दुआ करें, अल्लाह पर यकीन रखें, इंशाअल्लाह जीत हमारी होगी। शहीद होने वालों के लिए जन्नत है। लोग सारी रात दुआएं मांगते रहे। इमरान सो नहीं सका। मैं बाप की दुआओं, माँ के आंसू, बहन की मुस्कुराहट के बारे में सोचता रहा। दुआएं करते रहे, ए अल्लाह मेरे घर वालों को सुकून अता फरमा, मुझे सब्र दे, बराहे करम मुझे फतह अता फरमा, मेरे गुनाहों को मुआफ़ फरमा। सुबह फजर की अजान दी गई। सब ने बाजमात नमाज अदा की। फिर अल्लाह अकबर के नारे लगाए गए। जंग शुरू हो जाती है। तीरों की बारिश शुरू हो गई। तलवारें चली, चीखें गूंजी। इमरान पहली जंग में था। तलवार हाथ में लेकर आगे बढ़ा, दुश्मन पर हमला किया। 1, 2, 3 दुश्मन गिरते रहे। सिपाही हैरान रह गए। वो पहली बार लड़ रहा है, लेकिन वो शेर की तरह लड़ रहा है। जमाल भी आगे था, लड़ रहे थे।
लेकिन एक दुश्मन ने पीछे से तलवार से उस पर हमला कर दिया। जमाल गिर पड़ा, उसकी कमर से खून बहने लगा। इमरान दौड़ता हुआ आया। कमांडर साहब ने उसे उठाया, पीछे पीछे लड़ा। मैं हाजिर हूं जनाब, तुम फिक्र ना करो। जमाल ने जोर से मुस्कुराकर कहा, बेटा लड़ते रहो, अल्लाह हमारे साथ है। लड़ाई 2 घंटे तक जारी रही। जमीन खून की नदियां बन गई, लोग शहीद हुए, चीखें गूंज उठी, लेकिन आखिरकार हम जीत गए। ज़ादपुर फतह। स्याह परचम लहराया। सिपाहियों ने नारे लगाने शुरू कर दिए, अल्लाह अकबर, जीत हमारी है। वापसी पर सिपाही इमरान को कंधों पर रखकर नाच रहे थे। इमरान इमरान शेर इमरान शहजादी अलशिफा महल की खिड़की से देख रहा था। मैंने अपने दोस्त से पूछा, क्या ये वही लड़का है जिसने मेरे साथ बदतमीजी की? दोस्त ने कहा, हाँ शहजादी, लेकिन आज इसने कमांडर जमाल की जान बचाई और जंग जीत ली। हर कोई उसकी तारीफ कर रहा है, वो हीरो बन गया। महल में खुशियाँ। बादशाह ने इमरान को बुलाया, गले लगाया और उसकी पेट थपथपाई। बेटा, अल्लाह ने तुम्हें बहादुरी दी है, आप हमारा फख्र हैं। इमरान घर चला गया। अब्दुल्ला ये देखकर रोने लगा, गले लगाया, मेरा बेटा हीरो बन गया। फातिमा दुआ करती रही, आयशा नाचने लगी। भाई अलशिफा के दोस्त हीरो महल में बैठे थे। एक ने कहा कि इमरान कितना ताकतवर है, कौन सी लड़की इतनी खुशकिस्मत होगी कि उसकी बीवी बन जाए। दूसरे ने कहा, हाँ वो अब सिपाहियों का हीरो है, हर कोई उसकी तरफ देखता है। अलशिफा खामोश रही, लेकिन रात को बिस्तर पर लेटी सोचती रही, वो बदला लेने वाला लड़का अब हीरो बन चुका है। उसका सब्र, उसकी बहादुरी। जब वो मेरा गुस्सा सुनकर खामोश रहा, मेरे दिल में कुछ खटकने लगा। अगली सुबह अलशिफा ने अपना बदला लेने का मंसूबा बनाया। वो चाय का कप लिए महल की राहदारी में खड़ी हो गई। इमरान आ रहा था, वो जानबूझकर टकराया, उसके हाथ पर गरम चाय गिराई। वो चीख उठी, क्या आप अंधे हैं? देखकर चल नहीं सकता? आप जैसे लोगों को यहाँ नहीं आना चाहिए। इमरान का गुस्सा एक लम्हे के लिए भड़क उठा, आंखें सुर्ख हो गईं, हाथ कांपने लगे। लेकिन मुझे जमाल की बात याद थी, शहजादी इज्जत से पेश आओ। वो खामोश रहा। उसने सर झुकाकर कहा, माजरत शहजादी, ये मेरी गलती थी, तवज्जो नहीं दे रहा था, मैं अब से एहतियात करूँगा। और वो खामोशी से चला गया। अलशिफा चौंक गई। मैं सोचता रहा कि ये वाकई बदल गया है, पहले लड़ते थे लेकिन अब सब्र कर रहे हैं। ये सब्र कहाँ से आया? दिन गुजरते गए। जमाल अब बूढ़ा हो रहा था। पुराने जख्म दर्द करने लगे, कमर दर्द और घुटनों का दर्द। एक दिन वो बादशाह से मिला और कहा कि जनाब, अब मेरी ताकत कम होती जा रही है, लगाम किसी और के हवाले कर दे, मैं अब सिर्फ मशवरा दे सकता हूं। बादशाह ने कहा, जमाल, तेरे बगैर फौज कैसे चलेगी? आप जंग कैसे जीतेंगे? जमाल ने कहा, जनाब, कोई शख्स है जो ये जिम्मेदारी ले सकता है। इमरान, इसमें बहादुरी है, सब्र आ रहा है, सिपाही इस पर यकीन करते हैं, वो है नई नस्ल। बादशाह सोच में पड़ गया। फिर उसने कहा, ठीक है, चलो इमरान को नया कमांडर बनाते हैं। शहर में खबर फैल गई, नया कमांडर इमरान अब्दुल्ला का बेटा है। लोग हैरान और खुश हुए और लोग बाजार में बातें करने लगे, लोहार के बेटे का घोंट सालार, अल्लाह की कुदरत देखे। इमरान को पता चलते ही खौफजदा हो गया। जमाल के पास गया। उसने कहा, जनाब, मैं ये जिम्मेदारी कैसे उठाऊंगा? मैं एक लोहार का बेटा हूं। जमाल ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी कबूल की। बेटा, अल्लाह ने तुम्हें चुना है, मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हें सिखाऊंगा, बस दिल साफ रखो, इज्जत कायम रखो, नमाज पढ़ो। अब अलशिफा रात को सुकून से नहीं सो पाती थी। वो इमरान को दूर से देखती, जब वो सिपाहियों की तरबियत करता, वो ऊंची आवाज में हुक्म देता, लेकिन उसके दोस्त एहतराम से उसकी तारीफ करते। शहजादी को देखे, तरबियत के दौरान इमरान किस कदर नेकी सिखाता है, वो हर किसी से मोहब्बत करता है। अलशिफा को पहले तो गुस्सा आया, अब कोई और एहसास बेदार हो रहा था, इज्जत, पसंद और फिर मोहब्बत। उसने कई बार उसे नाराज करने की कोशिश की। कभी कभी वो मुझे ताने देती,
आप अभी तक बाजार से हैं। कभी कभी वो मुझे नज़रअंदाज कर देती, लेकिन इमरान हमेशा सर झुकाकर खामोश रहा। वो मुस्कुराकर चला जाता। ये देखकर उसका दिल पिघलने लगा। मैं रात को दुआ करता हूं कि ए अल्लाह, ये एहसास सही है या गलत? अगर सही है तो मुझे रास्ता दिखाओ। फिर एक दिन बड़ी मुसीबत आई। दुश्मन की एक बड़ी फौज, हजारों सिपाहियों, हाथियों, तोपों, तेज तलवारों ने हमला करके काला नूर पर कब्जा कर लिया। बादशाह फिक्रमंद है। इमरान को अदालत में बुलाया गया। बेटा, अब तुम्हारी बारी है। फौज ले लो और फन वापस लो। ये जंग मुश्किल है, बहुत ज्यादा दुश्मन है, लेकिन हक हमारा है। इमरान ने सर झुकाकर कहा, जी जनाब, इंशाअल्लाह हम जीतेंगे। मुझे अल्लाह पर भरोसा है। मैं जा रहा हूं। रात को घर चला गया। अब्दुल्ला और फातिमा रोने लगे। अब्दुल्ला ने कहा, बेटा, इस बार दुश्मन बहुत है, सारी रात दुआ करूंगा। फातिमा ने कहा, ए अल्लाह, मेरे बेटे को वापस कर दे, वो मेरा सहारा है। आयशा रोती रही, भाई मत जाओ। इमरान ने सबको गले लगाया। उसने कहा, अब्बा जान, आप फिक्र न करें, अल्लाह मौजूद है, बस दुआ करो, अल्लाह ने जो लिखा है वो होगा। अलशिफा को इसकी सहेली से खबर मिली। उसका दिल धड़कने लगा। वो महल के कमरे में अकेली बैठी रोती रही। मुझे लगता है कि अगर कुछ होता है तो मैं उससे प्यार करता हूं, लेकिन मैं नहीं कह सकता। हर कोई इस बादशाह की बेटी का मजाक उड़ाएगा जो चुपके से लुहार के बेटे के सामने सजदा में गिर गई थी। मैंने दुआ की कि ए अल्लाह, इमरान की हिफाजत फरमा और उसे वापस ला। मैं इससे प्यार करता हूं, मेरी खताएं माफ कर दे। वो शरीफ और बहादुर है। सुबह फौज निकल गई। जंगल का रास्ता लंबा था। दरख्तों के साए थे, परिंदों की आवाजें थीं, कभी हिरन नजर आते थे। हम शाम को पहुंचे, झोंपड़ियां लगाई, खाना खाया और आराम किया। इमरान ने फौजियों के साथ मिलकर मंसूबा बनाया। उसने एक वफादार सिपाही रहीम को जाली कमांडर बना दिया। पहले रहीम आधी फौज के साथ हमला करेगा, दुश्मन को आगे खींचेंगे। फिर इमरान आधी फौज के साथ पीछे से आएगा, दोनों अतराफ से घेराव करेंगे। सिपाहियों ने कहा, इंशाअल्लाह काम हो जाएगा, अल्लाह हमारे साथ है। सुबह जंग शुरू हो गई। रहीम की फौज ने पहले हमला किया। दुश्मन खुश थे, आगे बढ़ो। फिर अचानक घोड़ों की तेज आवाज। इमरान पीछे से आया। दुश्मन खौफजदा हो गए। इमरान तलवार उठाएगा। वो अकेला 4-5 दुश्मनों से लड़ता। वो हमला करता और फिर डट जाता। खून बहने लगा। जमीन सुर्ख हो गई। जंग 3 घंटे जारी रही। सूरज गरूब हुआ। शाम होने लगी। दुश्मन थक हार कर भागने लगे। इमरान की फौज महल का दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल हुई। फतह का स्याह झंडा लहराया। सिपाहियों ने अल्लाह अकबर के नारे लगाना शुरू कर दिए। इमरान जिंदाबाद। जख्मियों के इलाज के लिए इमरान जिंदाबाद के नारे लिखे गए। बादशाह ने उसे कासिद के जरिए भेजा। सुबह तक कासिद फरीदाबाद पहुंच गया। बादशाह उसे पढ़कर खुश हुआ और रोने लगा। महल में जश्न की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। अलशिफा को खबर मिलती है। वो रो पड़ी और खुशी से उसका शुक्रिया अदा किया। बादशाह, अबू इमरान से मौसूल होने वाले इक्तिबास ने मेरा दिल जीत लिया। मैं इससे प्यार करता हूँ। मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। वो बहादुर है, वो शरीफ है, वो सब्र करता है। बादशाह हैरान हुआ। बेटी, वो लोहार का बेटा है, हम शहजादियां हैं। अलशिफा ने रोते हुए वजाहत की, अबू, अल्लाह ने उसे चुना है। हम इसकी वजह से जीत गए। इसने मेरा दिल जीत लिया है। इसके बगैर सुकून नहीं। बादशाह सोच में पड़ गया। फिर मुस्कुराकर बोला, ठीक है बेटी, आपकी खुशी में सब कुछ। ये रिश्ता अल्लाह ने बनाया है। इमरान लश्कर लेकर वापस आया। शहर के दरवाजे पर लोगों ने उनका इस्तकबाल किया। फूलों की पत्तियां निछावर की गईं, ढोल बजाए गए और नारे लगाए गए। फौज के सिपा सालार इमरान ने उसे महल में बुलाया, गले लगाया और कहा, बेटा, फतेह का सबसे बड़ा तहफा मेरी बेटी अलशिफा की शादी है। फौज की कमान भी तुम्हारे हाथ में होगी। इमरान ने हैरान होकर कहा, जनाब, शहजादी मुझसे नफरत करती है, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूं? बादशाह ने उसके कान में आहिस्तगी से कहा, बेटा, उसने खुद मुझे बताया है कि वो तुमसे मोहब्बत करती है। अल्लाह ने तुम दोनों को इकट्ठा किया।
रात को महल में बड़ा जश्न था। रोशनियां, खाना, गाने, लोग हलाल अंदाज में रक्स करते हैं। इमरान ने अलशिफा को अकेले एक कोने में बुलाया। अलशिफा शर्मा रही थी, झुकी हुई आंखें। इमरान ने पूछा, शहजादी, तुम्हें यह एहसास कब से हुआ है? अलशिफा ने आहिस्तगी से कहा, मैं कल तुमसे नफरत करती थी। मुझे तुम्हारी बदतमीजी याद आई, लेकिन फिर तुम बदल गए। तुम्हारा सब्र, तुम्हारी बहादुरी, तुम्हारी इज्जत, सब ने मेरा दिल बदल दिया। जब तुम जंग से वापस आए तो मेरा दिल धड़कने लगा। मैं तुम्हारे लिए दुआ करता था। इमरान ने मुस्कुराकर कहा, शहजादी, मैंने भी तुम्हें पहले गलत समझा था, लेकिन अब अल्लाह ने हमें इकट्ठा कर दिया है। मैं जिंदगी भर तुम्हारी हिफाजत करूंगा। शादी चंद ही दिनों में हुई। महल में एक शानदार जश्न बरपा हुआ और शहर में खुशी की लहर दौड़ गई। इमरान ने महल के करीब नया घर बनाया, एक छोटा मगर खूबसूरत बाग, और अपने वालिद, वालिदा, बहन और अशफा के साथ वही सुकूनत इख्तियार की। इसने फौज की कमान की, शहर की हिफाजत की और रात को अलशिफा के साथ बैठकर कुरान की तिलावत और नमाज पढ़ी। ए अल्लाह, हमें नेक औलाद अता फरमा, हमारी हिफाजत फरमा। शुक्रिया। ये कहानी हमें गुस्सा छोड़ना सिखाती है। सब्र करो, नेक नियत रखे, ईमान को बरकरार रखे। अल्लाह आजिज़ाना आगाज़ से अजीम मंजिलें अता करता है। एक आजिज़ लोहार का बेटा शहजादी का शौहर बन सकता है, अगर दिल पाकीज़ा हो, गुनाहों से तौबा हो और अल्लाह पर ईमान हो। अल्लाह की रहमत लामहदूद है, हमें बस इसके लिए मांगने और बदलने की ज़रूरत है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो बराह करम इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को दबाएं ताकि नई कहानियाँ सबसे पहले आप तक पहुँचे।